सो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ही वॉज एबल टू, जिस समय थे, जिस टाइम एंड स्पेस में उनका वो दौर चल रहा था, ही टुक अ वेरी गुड स्नैपशॉट ऑफ चेंजिंग इंडिया इन 50s एंड 60s, जब इंडिया बदल रहा है। स्नैपशॉट ऑफ चेंजिंग विलेज इन इंडिया उस Yes. समय। अभी तक विलेजेस को कास्ट के नज़र से भी देखा जाता था। एक तो जैसे मैंने बताया, इंडिया को विलेज की नज़र से देखा जाता था, और दूसरा विलेज को कास्ट की नज़र से देखा जाता था। पावर जो कि एक कास्ट स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड थी, आज वही पावर पॉलिटिकल पार्टी से डिफाइन होती है। आज वही पावर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से डिफाइन होती है, इलेक्टोरल सिस्टम से डिफाइन होती है। एंड ऑफन व्हाट हैपेंस इज, in order to gain the number or the vote bank, politicians end up with policies that enable them to retain power. जो काम मीडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक न्यूट्रल पिक्चर दे, वो काम अगर लोग खुद ही करना शुरू कर लें, तो सोशियोलॉजी की जीत इससे बड़ी और कुछ हो ही नहीं उनके हिसाब से। So he is teaching us how to think. तो one thing that he is very clear कि जनता के लिए लिखेंगे. We want to write in simple language for common people to highlight some issues. Our understanding, our preparation, our studies should not be only for the students in the university. अगर थोड़ा सा, I know थोड़ा अलग सवाल होगा ये, but can we look at him in little critical sense today? Hello students. 3 दिन पहले ही one of India's most eminent sociologists, आंद्रे बेते का इंतकाल हो गया. He has been around for so many decades कि ऐसा लगता था कि he is timeless. But when the news appeared, we were all shocked. So today I have with me Nishad sir, who is our sociology faculty at Level Up IS, and we want to discuss his contribution in a very brief manner, as a kind of obituary also and remembrance also. So hello Nishad sir. Hello sir, thank you for having me here sir. Thank you. Welcome sir. Sir, I have to tell you one experience that I had in the past with Andre Bete. उनसे मैं एक बार मिला हूँ. It was 15 years ago. He had come to present some book chapter, and it was a very intimate setting at Nehru Memorial. वहाँ पे after he presented his chapter, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि how to pronounce his name, Andre Bete और Andre Bete Ille or something. Now जितना मैं समझता हूँ, he has been in India entire his life. What is this name? What is the background of him? So yeah, firstly, as you rightly said, it is definitely great loss to the academics, to the whole Academy of Sociology, particularly, and social sciences in general. And when it comes to his background, specifically his name, he has described about his childhood journey and how he was named. He was born to a French father and a Bengali mother. And he had written a classic essay on this, Two Grandmothers. Oh, One was French and second was Bengali. Okay. So I think since his father was French, so that must have influenced the very nomenclature. And initially students do struggle when it comes to naming him. They call him Beteli, as you said sometimes. But it's called as Andre Bete. sir, I have seen that students in sociology also and anthropology also study him. Yes, sir. But he preferred to, I think, focus more on sociology. उसके पीछे कुछ कहानी है? जी सर, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। 1953 में उन्होंने अपना MS किया था एंथ्रोपोलॉजी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। एंड आफ्टर completing his MS in anthropology, he was looking for a job, and he actually wanted to get into lecturership. And before he got the job as a lecturer in Delhi University, he worked as a research associate in Indian Statistical Institute. Okay. After which he got appointment letter from Delhi University, where he worked with M.N. Srinivas, who was another classical sociologist of those days. And he was often introduced by many people as an anthropologist, to which one day he decided to correct somebody
and he said that, well, I am a lecturer of sociology at Delhi School of Economics. I'm not an anthropologist. To which the other person asked him, why would you say so? Because you have already studied anthropology and you are MS in anthropology. Is there any specific reason? So he was of the view that when we study anthropology, we end up with a very colonial lens of looking at the people as exotics, as the survivals of the ancient past, having some old customs to deal with, which are supposed to be uh, object of study to a Western colonial person. The customs would be like levirate, sororate, magic, religious beliefs. And he did not want to be seen through that lens. And he believed that since India was changing, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके बाद 59 तक आते आते दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी के लेक्चर वो बने, तो तब तक माहौल बहुत अलग हो चुका था इंडिया का. इंडिया वाज लुकिंग फॉर डेवलपमेंट on democratic lines. The primary questions before us were not the customs of the exotic. The primary questions before us were poverty, inequality, development, and the policy framing on the lines of capitalism or socialism. So these kind of questions he found were more engaging to him than dealing with the questions on the life of the exotics. And that is why he preferred To be called a to be called as sociologist. sociologist. As you said, he came to Delhi and he met M.N. Srinivas, who was like giant of his time. बिल्कुल सर. And he started his career apparently in the similar lines. But then he introduced so many things and कहते गुरु से आगे शायद चले गए. So can you for us very briefly summarize what is his chief contribution Chief contribution of M.N. Srinivas? of Andhra Of Andhra Pradesh? Bheti? Chief contribution, sir, I would say primarily because he was guided by M.N. Srinivas. He did a village monograph. पहले तो उन्होंने एक village study करी थी. Since M.N. Srinivas was coming from the same legacy of studying India through the lens of village, where village was seen as a unit to study India, as was done by his mentor, Radcliffe Brown and Evans Pritchard. So वो चीज कैरी ऑन होते होते आगे आंध्र बेते तक भी पहुंची. बट एक फर्क है आंध्र बेते की विलेज स्टडी में, जो उनका पहला कंट्रीब्यूशन है, कि अनलाइक एम.एन. श्रीनिवास हु डिड हिज विलेज स्टडी इन हिज ओन होम टाउन मैसूर, where he knew the local language, the dialect, customs, etc. beforehand, Andre Bete was completely alien to this village of Tamil Nadu. Because Andre Bete himself was never from Tamil Nadu. He was a Bengali person or a Frenchman, but never a Tamilian. And he did not know Tamil language. Yeah, he did not even know Tamil language. Interesting. So the very idea of presenting something from an outsider perspective was very natural to him now, because he was going to study an alien village to about which he did not have any idea beforehand, and he studied the village of श्रीपुरम. और वो मानते थे कि श्रीपुरम को स्टडी करने का मतलब है तमिलनाडु की बेसिक सोशल ज्योग्राफी को जान जाना, कि किस प्रकार की कम्युनिटीज रहती हैं तमिलनाडु में और कैसा इनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज को लेकर. तो पहला तो उनका कंट्रीब्यूशन यही था, विलेज स्टडी. दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका ये रहा कि अभी तक विलेजेस को कास्ट के नज़र से भी देखा जाता था. एक तो जैसे मैंने बताया इंडिया को विलेज की नज़र से देखा जाता था, और दूसरा विलेज को कास्ट की नज़र से देखा जाता था. जैसे अम्बेडकर कहते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बिल्कुल, जैसे अम्बेडकर भी कहते हैं कि विलेज और कास्ट जो है वो मेन आपका सिविलाइजेशन का एक पहचान बना हुआ है. तो उसी नज़र से वो कॉलोनियल नज़र है, कॉलोनियल गेज है वो. तो इस चीज से थोड़ा आंध्र बेते हटे. उन्होंने विलेज तो स्टडी किया, बट कास्ट की नज़र से नहीं पर्टिकुलरली. ही एक्चुअली
introduced the framework of class also Okay. this time around. अब यहाँ से थोड़ा सा डिपार्चर हो जाता है एकेडमिक्स में, क्योंकि माना जाता था कि आप कास्ट की नज़र से अगर देखते हो तो आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में फॉल करोगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादातर मानते थे कि कास्ट इज अ यूनिट दैट इंटीग्रेट्स पीपल, और उसी के नज़र से हम बाकी चीज़ें ऑक्यूपेशन, फूड, कस्टम समझ सकते हैं लोगों के। मार्क्सिस्ट लोग क्लास के एनालिसिस को सामने रखते थे, इन्होंने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। कास्ट और क्लास, वो बोलते थे दोनों अलग फ्रेमवर्क हैं और आप दोनों को एक नहीं मान सकते, आप दोनों को स्टडी करो कि दोनों में चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस गांव में, श्रीपुरम में, एक वक्त था जब कास्ट ही लोगों की क्लास डिफाइन करता था। कास्ट इज क्लास, क्लास इज कास्ट, जो कुछ जी लोगों ने कहा है, पॉलिटिक्स में भी कहा है। जी, हाँ। कास्ट इज क्लास, Yes. वो होता भी था, which means Brahmins used to be in that village quite wealthy, and they used to be landowners, landlords. The non-Brahmin communities, which are technically a word, which is technically a word that he's using for peasant community, जिसको यूजुअली नॉर्थ में शूद्र बोला जाता था। नॉन ब्राह्मण communities particularly were found as tenants under these landlords who were Brahmins. And there was third community called as Adi Dravid, जिसको यूजुअली दलित कम्युनिटी बोला जाता था नॉर्थ में और साउथ के भी पार्ट में। आदि द्रविड़ वर फाउंड एज लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो आंध्र बेते बोलते थे कास्ट ही क्लास को डिफाइन कर रहा था, एक वक्त था तब तक, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद से कुछ बदलाव हुए हैं इस नेक्सस में। ये नेक्सस थोड़ा वीक हुआ है, और वीक कई कारणों से हुआ है। उन्होंने अपने कई रीजंस बताए उस बुक में, कास्ट, क्लास एंड पावर, उनकी क्लासिकल बुक है, जिसमें वो बताते हैं कि मैनी ब्राह्मण्स डिसाइडेड टू गो टू मद्रास यूनिवर्सिटी फ्रॉम श्रीपुरम विलेज। मद्रास यूनिवर्सिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा हब बन गया था एजुकेशन का, और मद्रास में रहना बहुत एक्सपेंसिव था। एंड मैनी लैंडलॉर्ड ब्राह्मण्स डिसाइडेड टू सेल ऑफ देयर लैंड टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन मद्रास सिटी। और उनको लगा कि ये लैंड के असली हकदार अगर बेचा भी जाए तो पेजेंट होने चाहिए। तो नेचुरल लैंड रिफॉर्म हो गया बिना गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के, कि पेजेंट तक लैंड वैसे ही पहुंच गया, बली ब्राह्मण की अपनी नीड की वजह से था। और ऐसे करके कई नॉन ब्राह्मण्स के पास लैंड ओनरशिप आनी शुरू हुई, और कई आदि द्रविड़ के पास भी टेरेंसी आनी शुरू हुई धीरे धीरे। एक बदलाव की तरफ एक फैक्टर है ये, और कई फैक्टर्स की उन्होंने बात करी है। तो वो बोलते थे कि कैसे अर्लियर class was defined by caste, now class is becoming independent of caste. So इसको उन्होंने इस तरह से सामने रखा। अच्छा, सो इन दिस बुक कास्ट, क्लास एंड पावर, ये तो कास्ट और क्लास की बात हो गई। जी, व्हाट इज द थर्ड थिंग, पावर देयर? पावर। पावर सर ऐसा है कि मैक्स वेबर से काफी इन्फ्लुएंस थे आंद्रे बेते। अच्छा, कार्ल मार्क्स और वेबर साथ में? बिल्कुल सर, वो थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? बिल्कुल अजीब सी बात है, और वो यही उनकी खासियत भी थी। He was never a Marxist or a structural functionalist. He was just a sociologist. This is what he always used to say, that I am open to every idea. And he used to say, I may not agree with the political propaganda of Marxism, as people often equate this school of philosophy with. But I definitely like the academic uh, orientation of this philosophy, that it enables you to study economy as a structure that influences others Methods are useful. structures. Yeah, method. He was very much influenced by the method and the way Marxist study society like a system where economy is the determining factor, although he may not agree with the political agenda of it. तो उन्होंने वेबर और मार्क्स और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। जहां तक बात आती है आपके क्वेश्चन की पावर का एंगल, क्योंकि वो वेबर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और वेबर मानते थे कि समाज में कोई एक लेयरिंग नहीं होती इंसान की। ह्यूमन स्पीशीज जो है अर्थ में, वो पैसों के मामलों में तो डिवाइडेड है ही,
पावर के मामले में भी डिवाइडेड है, कोई लोग बहुत पावरफुल हैं, कोई लोग बहुत पावरलेस हैं। और तीसरा स्टेटस के मामले में भी बहुत डिवाइडेड है, किसी के पैसे को बहुत इज्जत मिलती है या किसी के लाइफस्टाइल को बहुत इज्जत मिलती है, किसी के लाइफस्टाइल को इज्जत ही नहीं मिलती। तो उन्होंने ह्यूमन स्पीशी में 3 डिवीजन देखी, स्टेटस, पावर और क्लास। बेते ने इन्हीं 3 डिवीजन को यूज किया है श्रीपुरम की स्टडी में, जहां पे उन्होंने कास्ट, क्लास और पावर तीनों को इंटीग्रेट किया। वहां पे वो बोलते हैं कि जैसे एक वक्त था कि ब्राह्मण्स ही लैंडलॉर्ड होते थे, उसी वक्त में ब्राह्मण ही पॉलिटिकल हेडमैन भी होते थे, पॉलिटिकल एलिट्स भी वही होते थे उस गांव के। यानी उस गांव की गांव में अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो वो वहां के ब्राह्मण सरपंच ही लेते थे, मतलब सरपंच ही ब्राह्मण होते थे कभी एक वक्त। ये श्रीपुरम विलेज के लिए कह रहे हैं, वो पूरे इंडिया के लिए उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये हुआ कि डेमोक्रेसी का आइडिया बहुत पॉपुलर होने लग गया कि जिसके नंबर ज्यादा हैं वो लोग पावर में आए, वो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाए। तो पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया बड़ा एलियन आइडिया था उस टाइम के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों ने बनानी शुरू करी, पता चला नॉन ब्राह्मण की तो नंबर ज्यादा है, तो वो हमेशा पावर में आने लग गए, ओनली बिकॉज ऑफ नंबर। तो ब्राह्मण का जो होल्ड था पावर के ऊपर वो लूज होने लग गया। बट इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी ब्राह्मण पावर में नहीं बचा। इट इज जस्ट दैट many individuals from non-Brahmin started becoming powerful, and many individuals from Brahmin community started becoming powerless. तो इस पूरे शिफ्ट को वो श्रीपुरम विलेज में ही देखना चाहते हैं। वो नहीं बोलना चाहते थे कि ऑल इंडिया फिनोमेना है। उन्होंने बोला कि कैसे एक गांव बदल रहा है, जहां पे कास्ट वाज डिफाइनिंग क्लास एंड पावर, अब उसी गांव में कास्ट हैज बिकम डीकपल्ड फ्रॉम क्लास एंड पावर, विच मीन्स पावर जो कि एक कास्ट स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड थी, आज वही पावर पॉलिटिकल पार्टी से डिफाइन होती है। आज वही पावर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से डिफाइन होती है, इलेक्टोरल सिस्टम से डिफाइन होती है। और दूसरी तरफ जहां लैंड ओनरशिप भी कास्ट स्ट्रक्चर में ही डिफाइंड थी या एम्बेडेड थी, वो लैंड ओनरशिप भी अब एक तरीके से डिस्पर्स हो रही है ड्यू टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, कमर्शलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे लैंड क्योंकि कमोडिटी बन गया था। तो इस पूरे बदलाव को उन्होंने अलग अलग फ्रेजेस से एक्सप्लेन किया है उस विलेज के लिए। क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी उस वक्त के लिए जहां पे ब्राह्मण के पास ही जमीन है और पावर है, टू डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी जहां पे अब किसी के पास भी कुछ भी है बट सबके पास सब कुछ बराबर नहीं है। इनइक्वालिटी यानी आज भी है, पहले भी थी, सिर्फ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। क्योंकि कोई भी आदमी ये समझ सकता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से, इंडिया के आजाद होने से इक्वालिटी आ गई और पहले इनइक्वालिटी होती थी। तो उनको, बेते को लगता था, प्रोफेसर बेते को, कि बहुत ब्रॉड आइडियाज होते हैं ऐसे बोलना कि पहले इनइक्वालिटी It's होती too थी। generic. हाँ, टू जेनेरिक। So he used to say inequality was there in the past and inequality is there even in the present. Only the form of inequality has Nature is changed. changing. So क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि he was able to, जिस समय थे, जिस टाइम एंड स्पेस में उनका वो दौर चल रहा था, he took a very good snapshot of changing India Definitely. in 50s and 60s जब इंडिया बदल Very रहा good है, snapshot of changing village. चेंजिंग विलेज इन इंडिया उस Yes. समय, राइट। तो आज हम 2026 में हैं। अगर थोड़ा सा, आई नो थोड़ा अलग सवाल होगा ये, बट कैन वी लुक एट हिम इन लिटिल क्रिटिकल सेंस टुडे कि हाउ इज हिज स्टडी ऑफ दैट एरा इज रिलेवेंट टुडे? सर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्योंकि इतने वास्ट हैं, उन्होंने विलेज को तो स्टडी किया ही है, कास्ट सिस्टम को भी स्टडी किया उन्होंने अलग से, और डेमोक्रेसी को भी स्टडी किया है। यस, वी हैव अ बुक हियर, डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस बहुत ही अच्छी बुक है, और इनके ऊपर उन्होंने एक वीडियो लेक्चर भी लिया हुआ है। अच्छा, हैबिटेट सेंटर में ही उनका एक लेक्चर भी था इसी बुक के ऊपर। तो उनके कंट्रीब्यूशन की रेंज बहुत वाइड है, तो इसलिए जब हम उनका रेलेवेंस देखें आज की डेट में, तो हमको उनके कंट्रीब्यूशंस जितने भी रहे हैं उसमें से जो जो रेलेवेंट है उन सबको देखना पड़ता है इंडिविजुअली। अगर मैं बात करूं
उनकी स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी की, तो उनका एक बड़ा पॉपुलर फ्रेज भी रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी स्विंग्स बिटवीन पॉपुलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समथिंग ऑफ नंबर्स और Some, कुछ yes, वैसे कुछ कहा था उन्होंने, बिल्कुल, राइट? कि एक तरफ डेमोक्रेसी इज अबाउट वैल्यू सिस्टम लाइक इक्वालिटी, डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस। दूसरी तरफ डेमोक्रेसी हैज a quantitative aspect to it, which is what we call as the numbers. And often what happens is, in order to gain the number or the vote bank, politicians end up with policies that enable them to retain power. And those policies actually are seen as populist policy that helps most of the people get the benefit at the cost of some minority. So sometimes democracy tend to move towards more populist in orientation, favoring majority section at the cost of minority. And he used to feel that democracy is not just rule of majority, it is actually protection of minority. So when minority are not protected, so then we are compromising with the social justice aspect of democracy. So वो क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी को लेके बड़ा परेशान रहते थे, इसलिए उन्होंने इस परेशानी को इस फ्रेज में डाल दिया कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अ स्विंग बिटवीन कभी एक्सट्रीम कभी वो एक्सट्रीम। यस। तो एक्चुअली आई हैव हिज अदर बुक ऑल्सो हियर, यूनिवर्सिटीज एट द क्रॉस रोड्स। तो ये दोनों किताबें जो है दे टॉक अबाउट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट, नॉट वन हु इज स्टडिंग द विलेजेस एनी मोर। तो उनका करियर हम पूरा देखें, द ग्राफ ऑफ हिज करियर, इट सीम्स दैट ही हैज हैड वाइड कंट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स। तो अब मेरे मन में एक सवाल आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट टुडे इन इंडिया एंड व्हाट कैन वी स्टडी और व्हाट कैन नो फ्रॉम हिज करियर अबाउट दैट, उनका फंक्शन क्या है समाज में? सर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजिस्ट का रोल क्या है। एंड इस रोल को लेकर शुरुआत के सोशियोलॉजिस्ट काफी लोग लिखते भी थे, एम.एन. श्रीनिवास हो, आंद्रे बेतो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो खासकर, क्योंकि सोशियोलॉजी का रोल इन जनरल अगर आप पूछोगे उसके ओरिजिन में छुपा हुआ है। जो वेस्ट में जैसे ये डिसिप्लिन शुरू होता है तो वहां पे तो रोल साफ था कि समाज में बदलाव लाना इज द रोल। ओके, यानी कि शुरुआत की सोशियोलॉजी बड़ी एक्टिविस्ट थी, प्रैक्टिस अप्रोच की तरफ चलती थी। ऑगस्ट कॉम जो कि फाउंडर हैं इस डिसिप्लिन के, वो भी बोलते थे कि सोशल इंजीनियरिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। यानी एनीथिंग विच इज नॉट वर्किंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम should be discarded, and anything that can help in maintaining equilibrium should be incorporated, which means वो चाहते हैं इंटरफेरेंस करना, इंटरवीन करना सिस्टम में। अब एक साइंटिस्ट जो होता है टेक्निकली, क्योंकि क्लेम उनका सोशियोलॉजी को लेके साइंस की तरफ भी था कि हम एक साइंस है, तो एक साइंटिस्ट को इंटरवीन कम से कम करना चाहिए, उसको ऑब्जर्व ज्यादा करना चाहिए। तो अगर सोशल इंजीनियरिंग वाज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव, तो साइंस का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं लूज होता। तो ये जो डिलेमा था कि हम साइंस रहें या हम इंजीनियर हो जाएं, इस डिलेमा को लेके वेस्ट में बहुत डिबेट्स हुए। इवेंचुअली फिर कई ब्रांचेस आ गई। एक ब्रांच ने बोला कि वी आर जस्ट एम्पिरिकल साइंस, वी विल जस्ट ऑब्जर्व। सेकेंड ब्रांच इमर्ज एज क्रिटिकल साइंस, क्रिटिकल सोशियोलॉजी उसको बोलते हैं, मार्क्सियन एंड फेमिनिस्ट। They also claim themselves to be scientists. They say that we observe what are the issues in the system and we also prescribe solution to repair those problems. And this is something that scientists should do. This is their understanding of science. This is called as critical science. तो वेस्ट में तो रोल को लेकर बहुत डिबेट हुआ। इवेंचुअली यही अग्री हुआ कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टेट करेंगे
विदाउट आवर ओरिएंटेशन कि हम क्या चाहते हैं। इनफैक्ट इंडिया में अगर जब बात आती है सोशियोलॉजी की, तो ये डिलेमा पास ऑन होता है इंडियन स्कॉलर्स में भी। कुछ स्कॉलर्स बोलते थे कास्ट सिस्टम हट जाना चाहिए, ओके, सोशल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे थे वो। कुछ स्कॉलर्स जो कह रहे थे कि हमें कास्ट सिस्टम को हटाने की जगह कास्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है वो पढ़ना चाहिए, और कास्ट सिस्टम में चेंज कैसे आ रहा है वो पढ़ना चाहिए। तो हटाने की बात नहीं करेंगे, बस क्या ये सिस्टम करता है और क्या इस सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। आंद्रे बेते से भी यही पूछा गया था कि आपके हिसाब से रोल क्या है। तो आंद्रे बेते सर ने भी यही सेम चीज बोली। उन्होंने भी यही बोला कि unlike economists, because he used to compare sociology a lot with economics for his own reasons, mainly because he was working in Delhi School of आप Economics. भी डीसी से हो ना? जी सर। So he is from your institute. Yes sir, he is from our institute, और so to say we are from his institute. लेकिन ये है कि इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच थी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनमें बहुत फ्रेंड्स थे इनके। इंटेलेक्चुअल सर्कल इनका काफी वाइड था। तो प्रोफेसर के एन राज, प्रोफेसर VKRV राव, ये भी जो किताब है ना सर, जी it is dedicated to P.N. Dhar, K.N. Raj, M.N. Srinivas. तो all of them are जी जी। ये इनके शुरुआत के एक तरीके से आप मान सकते हो मेंटोर रहे हैं। तो KN राज बहुत अच्छे फ्रेंड थे इनके, जैसे ये बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में। तो इन्होंने देखा कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक्स अपने आप को साइंस क्लेम करता था उस टाइम पे, और इकोनॉमिक्स को वो देखते थे तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट यूज्ड टू वर्क एज अ पॉलिसी एडवाइजर, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट शुड ब्रिंग टू इफेक्ट डेवलपमेंट। On the other hand, Bete used to say that I should stay away from policy advising, because he says that unlike economics, जिनका intellectual force थोड़ा अलग है, they are concerned with regulation of production, distribution, consumption. Our focus is not about regulation of religion, economy, beliefs, customs. They should be studied like an outsider in its natural state, in their natural state. We are no one to regulate these. This is the task of reformers. So जिसको इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, उनके पैरेलल सोशियोलॉजी में तो नहीं, कम से कम सोशल लाइन में अगर बोला जाए तो सोशल रिफॉर्मर्स होते उनके हिसाब से। सो इसलिए उन्होंने बोला कि बट सोशियोलॉजी ये काम नहीं करेगा। सोशियोलॉजी का काम होगा ये बोलना नहीं कि लैंड रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, ये काम इकोनॉमिस्ट का होगा कि लैंड रिफॉर्म से जस्टिस आएगा और एफिशिएंसी होगी। सोशियोलॉजी का काम उल्टा होगा, ये बताना कि लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है और लैंड रिफॉर्म से उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ क्या, विलेज टू विलेज स्टडी करना, क्या बदलाव आया। so not prescriptive. Yeah, it's not prescriptive. It is going to be empirical science, it is going to be descriptive science, but it is not going to be normative or prescriptive science. This is what he used to say. But sir, if you look at his career, जैसे I have these two books. एक है Chronicles of Our Time. This is a collection of the articles that he wrote for Times of India back in 1970s and 80s. जी Very simple language. Rather, I started to fall in love with him for this book and the other book that is there, Ideology and Social Science. ये भी article collection है. जी सर। तो one thing that he is very clear कि जनता के लिए लिखेंगे. We want to write in simple language for common people to highlight some issues. Our understanding, our preparation, our studies should not be only for the students in the university. So at some level, he is trying to reach out to the masses. जी Even if not for prescription, at least to set the agenda or to bring some things, highlight some issues. So that is also a public intellectual का role वो अदा कर रहे हैं. He डेफिनेटली। is not only academic that way. यस यस। So and he has done it in a very beautiful way. Rather the issues he has picked up, democracy हो या universities हो, those issues are of present relevance. He is not only doing village study for next 60 years. वो तो उससे आगे काफी इवॉल्व हो गए. डेफिनेटली। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक कि उनका जो मतलब जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, माय लाइफ इज माय मैसेज,
That you can see from his career itself कि what a role sociologist to perform. Yes. तो वो भी से एग्जैक्टली सर ये बोलते भी थे वो कि जो असली रोल है सोशियोलॉजिस्ट का वो है इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनाना। जब तक सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे they would never be able to participate effectively as member of civil society and uh, you know realize benefits from democratic institutions. So to have a fruitful democracy you need to have a basic unit of informed citizenship and ये मानते थे सोशियोलॉजी का रोल है कि वो सिटीजन्स को सिर्फ इनलाइटन ना करे, सिटीजन्स को हर चीज के सारे पहलू समझाए और बायस ना डेवलप कराए। जब लोग सारे पहलू जान लेते हैं तो वो अपने लिए डिसीजन खुद ले सकते हैं, पर जब लोगों को पहलू एक ही पता रहेगा जैसे मीडिया में होता है, जो काम मीडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक न्यूट्रल पिक्चर दे, वो काम अगर लोग खुद ही करना शुरू कर लें तो हर कोई अपना खुद का मीडिया हाउस बन सके, तो सोशियोलॉजी की जीत इससे बड़ी और कुछ हो ही नहीं उनके हिसाब से। so he is teaching us how to think. Yes, his primary task was to make us understand how to think from all dimensions. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. On that note, I would like to conclude this discussion, and I hope कि you also read his books and enjoy that and get enlightened. Thank you.